मैं रूलिंग पार्टी हूँ। अरे आप देख, आप मेरे को बना देते अपने दिमाग में, वो आपकी मोहब्बत है, पर मैं तो नहीं होना। I have accused the Adhoni MLA. I have accused some functionaries of the ruling party in Hindupur, and in Adhoni, the concerned MLA of that party went around pressurizing my candidate, saying that the chief minister is very soon going to make him a minister and you should not put up candidates. I find it really perplexing and surprising that just because one is assuming that he will be made the chief minister by Mr. Jagan Mohan Reddy, so, and he feels that there should be no contest in elections, then why should we hold elections? Why should we hold elections? Elections are held so that people give their opinion, their choice, their likes and dislikes. Just because you want to become minister, you cannot, stop people from voting against you. So that is why I had said in particular context of Adhoni and in Hindupur. सर, जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना डेंट कर दिया वहाँ पर जो बंगाल में, जिसकी वजह से जिस लेवल से MIM वहाँ कॉन्टेस्ट करने जा रही थी, अब वो शायद नहीं उस लेवल पे। पीरजादा MIM के लिए, MIM के वो उस पूरी जो कोशिश थी बंगाल की, उसके कितने देखिए एक बात सुनिए। नंबर 1 सर, नहीं सुनिए एक बात सुनिए। मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ कि मेरी गाड़ी को डेंट कर देंगे आप। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, और कोई किसी को डेंट कर सकता ना उसमें ताकत है। आप देख लेंगे कि क्या होने वाला है। डेंट कौन करेगा मेरे को? क्या मैं कोई वही कमोडिटी हूँ कि डेंट कर देंगे? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे हम लोग। बट धोखा तो हुआ सर ना। क्या, किस बात का? अब्बास सिद्दीकी ने। अरे भाई आपके अल्फाज हैं, हम अपना फैसला आप बताएंगे ना, आपको क्यों फिक्र कर रहे हैं? We will definitely let you know, madam, at an appropriate time, or auspicious time, sorry, let me add that. When our political stars are in complete alignment, then we'll let you know. So talking about Vishaka Steel Plant protesters, you supported the protesters? Definitely, I demand from the Prime Minister of India and his government that they should immediately take back their decision of privatizing the RNIL Vishaka Steel Plant. It clearly shows that the BJP government has no feel for the history of Andhra Pradesh. At the same time, that factory reflects the Andhra pride. They don't know that more than 30 people sacrificed their lives for the factory to come at that place. They don't know that thousands of villages were taken, had to be vacated just because this factory could come into existence. What is this? If they don't have a captive mine, give them captive mine. More than 1 lakh acres of land is there. What is this? How can the government do this daylight robbery? How can you take away that factory and privatize it? Can't the government of India revive it? It should be revived. No two things about it, and I hope that the Chief Minister of Andhra Pradesh will take a more stringent and a clear stand on this issue. Though he has written a letter to the Prime Minister, but the people of Andhra Pradesh are dead against. I have seen wherever I went on roads, everywhere people were protesting. They were stopping me and telling me that we are against this, and it's a huge issue in Andhra Pradesh. there are also reports that you said that the ruling YSRCP is acting as the best of BJP in this particular issue. I want the ruling party to be more stringent and take a very clear-cut stand. Though the Chief Minister has written a letter, in that letter he has said, he has talked about many things of how that particular factory can be made profitable, but the ball is in the court of both the governments, and both the governments must ensure that this decision which has been taken must be reversed, it should be taken back. This is probably
No, but see, if you call someone a friend, you must be open if they are doing something which is not in interest of the public. That has to be done. I cannot call you my friend and still do not warn you, do not tell you that these are things which are not good. A true friend is one who would tell you on your face that these things needs to be corrected, and that is what I am doing. So friendship remains. I have huge respect for Jagan Mohan Reddy. I'll continue to have respect for him. But if such decisions are taken, if his MLAs work in this way, then definitely we'll speak about it also. Because in Andhra Pradesh, I hope that the ruling party understands that if you have a communal cauldron, let me give you in a very layman's language to understand it. If you have curd rice and you have a rice which is being fried, people will not go and eat curd rice. They will go for that rice only. So that situation, I hope the government understands, and they know for a fact that they have come out with that statement of the DGP of Andhra Pradesh, Mr. Gautam Sawant. He has come out with a statement of who were responsible in the desecration of the temples in Andhra Pradesh, to which political party they belong to. Unfortunately, you media people have not made it a national issue. No, you have not made it. You should have ran a 6 p.m., 9 p.m. rant over it. What happened? आप लोग तो टाइम कर दिए उसको. अरे those arrests are not directly linked with the political party, and that's why DGP. So that is why you don't. So now you are a DGP of the Andhra Pradesh Police. No, DGP. DGP has clearly said that he made certain statements, but he is not. My dear friend, the DGP makes a statement, gives out a written statement also, stating to which these alleged accused which have been arrested, to which party they belong to. You have not talked about the statement of the BJP observer in Andhra Pradesh who said that Andhra Pradesh will turn into Christianity. Secondly, you have not talked about a chief minister, Mr. Chandrababu, ex-chief minister, who happened to be chief minister for 14 years. He made that obnoxious statement. If tomorrow someone changes religion, does he lose his India citizenship? Please tell me. Listen to me. Changing of religion, Constitution guarantees you that. If I or you change your religion, are you not an Indian? Please tell me. How can Chandrababu Naidu make that statement? How can that BJP observer make that statement? But at the same time, they're also cheating the government rights and not showing themselves as, Christians. And also or forceful conversion. Who are you to ask me what I do in my house? Have you read the privacy judgment? What I do inside my house, what I do is part of my privacy, is now a fundamental right. But किसी को What is the, no, it is not cheating. I'm sorry, sir, it is not cheating. What I do with my life, whether I go to a church, whether I don't go to a masjid, whether I go to a temple, that is your individual choice. And that is how we celebrate our democracy. People go to church, people go to temples, people go to masjid. People don't go to all these places. That is what makes our Indian democracy work. लेकिन किसी को लालच देके तो नहीं बनाया जा सकता ना. एक गांव में, पूरे गांव में 3 क्रिश्चियन और 11 चर्च, ये कैसे बहुत मुमकिन है? जो SC/STs हैं वो क्रिश्चियनिटी. आप कौन होते भाई? नहीं, आप कौन होते? आप ठेका ले. सुनिए, एक बात सुनिए. 3 होंगे, 100 बनेंगे. आप अगर यही पलटा के दूसरे मजहब के बारे में बोले तो आप लोग चला जाते ना 9 बजे चला जाते आप लोग. देखिए देश को खतरा हो गया. अरे आपको तकलीफ क्या हो रही भाई? अगर देखिए, अगर कोई मजहब चेंज करता है अपना, तो क्या भारत की सिटीजनशिप लूज करता है वो? लालच देके नहीं कराया. अरे भाई लालच दे तो कंप्लेन कराइए ना. कंप्लेन कराइए, बिल्कुल सही है. लालच देकर अगर कोई मजहब चेंज करा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. एक नहीं कई, आप केस बुक कराइए 420 का, मगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बोले जा रहे हैं. अब किसी को अगर आप मजहब चेंज करना है तो यूपी में कानून बना दिए, बीजेपी रूल स्टेट्स में थे, 1 महीने की नोटिस देना कलेक्टर को, कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे. अरे नौकरी दो यार गरीब को, किसान मर रहा है तुमको. मैं मेरा मजहब चेंज करूं ना करूं, तुमको क्या करना है उसमें? तुम हर चीज में अपना क्यों डालते हो अपना चेहरा उसमें?
आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। राइट टू लाइफ है मेरे को, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर लूं। आपको क्या मर्जी है, मैं मजहब चेंज करूं ना करूं, भगवान को मारूं, अल्लाह को मानूं, किसको मानता हूं नहीं मानूं। इंटेंशनली डेमोग्राफिक कंडीशंस को आप क्या डेमोग्राफिक, कौन सी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है बताइए। आप देखिए, आप लोग सुनिए, ये जो आप लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना, ये संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर आप बजा रहे हैं। संघ परिवार का टेप रिकॉर्ड सुनिए, सुनिए संघ परिवार, अरे मैं आपको बता, अरे सुनिए ना, धर्मांतरण इशू है। हाँ सुनिए, संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है और एक वक्त आएगा कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी। मेरे भाई साहब सुनिए, आज आप ये सवाल क्यों नहीं करते हमसे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, बोलते थे ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जाकर कहती है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भारत का, और इसीलिए हम 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते। बताइए, अब आप बोलिए, अब बोलिए ना इसके ऊपर। पूरे मुंह बंद हैं पूरों के, कोई संघी नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं कि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2 चाइल्ड नॉर्म वो जो कानून नहीं बना सकते। अब मेरे से पूछ के बनाए है, अब बताइए आप। अरे भाई, दलाइल जब बात करते हैं ना तो इनके पास आवाज ही नहीं रहती कुछ। धर्मांतरण हो रहा है, पैसों से बराबर करिए, आप कौन रोक रहा है आपको। एक केस हुआ एक इंडिया के स्टेट में, बोले पैसे का, अरे वो कर्जा देना था, कोर्ट ने कह दिया वो बात, वो तो कर्जा देना था, इससे उस पर इल्जाम लगा दिया। सर मतलब क्या सर चेंज होके मतलब मजहब चेंज करने के बावजूद आप क्लेम भी नहीं करेंगे, मतलब रिजर्वेशन भी क्लेम करेंगे। क्या क्लेम करेंगे? आप क्रिश्चियन बोल के क्लेम भी नहीं कर रहे, BC D या फिर BCC में आएगा ना, SC बोल के क्लियरली क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्हें क्या मजहब चल रहा है, आपको क्या फिक्र है उसकी। नहीं सर, आप cheat नहीं नहीं, कर रहे हैं। आप प्रूफ कर, नहीं, अगर आपने टाइम्स नाउ का एक्सक्लूसिव स्कूप है, आप दला दो ना टीवी पे। सर मैं तो चलाया सर, 95 करोड़ तो यूएस से थ्रू NGO से आए। नहीं, आप क्या बात कर रहे, आप नहीं सर, आप नहीं, आप अभी क्या बात कर रहे, 95 करोड़ की नहीं बात कर रहे आप क्या बात कर रहे, रिलीजन चेंज। आप प्रूफ कर दो ना भाई, आप प्रूफ कर दो, बताओ कि देखो ऐसा कर रहे आप। CBCID खुद बोल रही सर। क्या 95 करोड़? हाँ 95 करोड़ ने मतलब चेंजेस हो रहे। अरे भाई, गौतम स्वामी भी बोले, मान लो, उसको ही मान लो ना। DGP आंध्र प्रदेश बोले, उसको ही मानो आप। अरे गुंटूर परसों जाके मैं वो स्टोरी करके आया सर, जो पहाड़ के ऊपर क्रिश्चियन क्रॉस बना है। तो क्या बनाए? क्रिश्चियन का जो क्रॉस बना है ना, हाँ गुंटूर में। अच्छा। उसमें डेजर्ट में जाके आया 2 दिन में। हाँ, क्या हुआ उसमें? उसमें वो जो बना है स्ट्रक्चर लीगल है, अच्छा। लैंड पे परमिशन नहीं है। अच्छा, हाँ सिर्फ एप्लीकेशन दिए तो है, हाँ। लेकिन बना दिए। अच्छा। तो स्टेटस को लगा दिया कि जो लोकल ऑफिशियल थे, MRO से भी जाके मिल के आया, तो किसके परमिशन से बना रहे, कैसा बना रहे। हाँ ठीक है, वो तो म्युनिसिपल इशू है, वो परमिशन का इशू है। भाई परमिशन का इशू है ना, परमिशन का इशू है ना खाली, ठीक है। करना बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल होता वो। आप कोई भी लॉ वायलेट करेंगे तो मगर उसको आप वो रंग क्यों दे रहे भाई? Because सर, तो क्या आप अपने मित्र से ये डिमांड नहीं करेंगे कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह के इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, ये मैं अभी मिलाकर बोलूंगा कि तिवारी साहब ने ऐसा कहा है, और आप ज्ञान दे रहे हैं, आपको मेरे जरिए से सुन लीजिए, मैं कहूंगा अभी बोलता हूँ। आप क्या ये डिमांड नहीं करेंगे कि ये जो है इस तरह के जो मामले आ रहे हैं उसको हम जांच के लिए कोई कमीशन गठन हो? मैं तो सिर्फ YSRCP रूलिंग पार्टी को इतना ही कहूंगा कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट को बनाने की। चंद्रबाबू नायडू को मैं तो एडवाइस नहीं कर सकता, वो तो आइंस्टाइन है माशाल्लाह से, मगर उनकी पार्टी को बीजेपी पूरा खत्म कर देगी, वो वैक्यूम बीजेपी बैठेगी। तो ये उनको भी सोचना है, बीजेपी खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर कोई भी लीडर ये समझ रहा है कि मैं बीजेपी को समझा लूंगा, बीजेपी को रोक लूंगा, ये नहीं होने वाला है। ये बीजेपी आप पे अटैक करेगी, हर तरह से अटैक करेगी और पावर हासिल करेगी। तो ये लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम खाली उनको कॉशन कर सकते। वो तो साहिब, जैसे उर्दू में बोलते हैं, साहिब समझ हैं, अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, वो सब समझ जाएंगे, मगर ये समझना चाहिए उनको। आप भी मानते हैं बीजेपी will be the force to reckon in आंध्र प्रदेश? हाँ, बीजेपी will
ये जो सब तमाशे हो रहे हैं उससे क्या कर रहे हैं बीजेपी, फिर क्यों कर रही है सब ये स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं? यही तो इनका मोडस ऑपरेंडी है ना। अगर वहां के पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर है वो भी समझे इस बात को, वो मेरे को एक्सेप्ट करे, बोले यस आप सही कह रहे हैं। आप देखो तिरुपति का भी पार्लियामेंट इलेक्शन तो नहीं हुआ इसके साथ, जब होगा आप देखो। और इन मामलों की जांच भी होनी चाहिए सर। कौन से मामलों की? लग रहा है कोई कमीशन बना के इस तरह का कौन से एलिगेशन कि ये कन्वर्शन हो रहा है और प्रोसेस को जो वो क्या वाकई में लालच देके हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, अपनी इच्छा से हो रहे हैं? नहीं, आप लोग एक स्कूप कर दीजिए ना, खत्म हुआ था, उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर देंगे कोर्ट में। गवर्नमेंट आप एक स्कूप कर दीजिए कि भाई इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। देखिए, अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है तो वो भारत का सिटीजन रहता है। अगर